dear children, today we will do a new lesson in our social science book, lesson number 16, Local Self-Government Explanation Part 1. Hello dear children, today we are going to do a new lesson in our social science book, lesson number 16, Local Self-Government. First of all, you will write the date 13/1/2021. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है ताकि सब काम स्मूथली हो सके उस एरिया का, दैट इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो नाउ वी स्टार्ट द लेसन. You are aware of our government, types of government and the level of government. Now let us study about the local self-government of our area. Dear students, a paragraph is given below for you. The things which are not applicable for you, draw a line on that and write correct detail in the blank given below. Now here you can see we have already done about the government in the last sem. So, and types of government and level of government also. Now we are going to discuss about the local government of our area. Here you will write I live in which city, where do we live, that you will write, that is Vadhavan, and there is a Gram Panchayat, municipality or corporation in my area, village or city. We have municipality, so you will write here, you will underline that, and the name of its head, sarpanch, president or mayor. Here we will write the name of our president. Okay, ask your parents and try to find it out on your own. After you fill in these details, it is understood that you live in a village. You are aware of the local administrative system of your area. Let us know how local administrative system functions or work. After you fill the details, ये भरने के बाद पता चलेगा कि आप कहाँ रहते हो, ग्राम पंचायत में रहते हो, म्यूनिसिपैलिटी में रहते हो कि कॉरपोरेशन में रहते हो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, कैसे वर्क करता है, क्या क्या उनको क्या काम करना होता है, हाउ डू दे, व्हाट इज देयर सोर्स ऑफ इनकम एंड ऑल. वी विल सी दैट व्हाट आर देयर ड्यूटीज, हु डज द वर्क. नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट local government, that is a panchayati raj. It is divided into two parts, village administration and city administration. And further village administration three parts में divided, village, taluka and district. And city administration municipality and corporation. ओके, तो जो विलेज लेवल पे काम करते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें विलेजेस होते हैं, तालुका होता है और डिस्ट्रिक्ट होता है. और जो सिटी में होता है वह म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है. नाउ वी स्टार्ट विथ पंचायती राज. वी हैव एक्सेप्टेड ए 3-tier system work of the पंचायती राज at village level, तालुका पंचायत at तालुका level and district पंचायत at district level. तो जो पंचायती राज है उसको 3 लेवल्स में, 3-tier सिस्टम में डिवाइड किया है. एक होता है पंचायती राज जो विलेज लेवल पे वर्क करता है, दूसरा है जो तालुका पंचायत वो तालुका लेवल पे करता है, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है. यह सी दिस इज एट द सेंटर, विलेज, देन तालुका, देन डिस्ट्रिक्ट. ओके, नाउ administration run by representatives elected by the people at the local level is called local self-government. These institutions are called local self-government organization. Gram Panchayat, Taluka Panchayat and District Panchayat belong to village government. Municipality and corporation are local self-government at city level. Now, as I told you, that administration run by representatives elected by people at local level is called local self-government, and these institutions are called local self-government organizations. Gram Panchayat, Taluka Panchayat and District Panchayat belong to the village local self-government, or municipality or corporation it is at the city level. Now, things to know. Panchayati Raj in India started from Bagadara village of Nagaur district in Rajasthan on 2nd October 1959. Panchayati Raj was implemented from 1st April 1963 in Gujarat. यानी सबसे पहला पंचायती राज जो था वो राजस्थान से स्टार्ट हुआ 2 अक्टूबर 1959 को नगौर
डिस्ट्रिक्ट के बगदरा गांव से, और उसके बाद गुजरात में इट स्टार्टेड इन ऑन 1st April 1963. Now here you can see, students, you can see a figure in figure 16.2 that Gram Panchayat is the base of all government. Taluka Panchayat is above it. The district Panchayat is above the Taluka Panchayat. After that, state government is there, which runs administration. Administration of Gujarat is carried out by the government of Gujarat. Our country is governed by the central government. Thus, Gram Panchayat is in the base of all the governments, and Gram Panchayat is the most important unit of Panchayati Raj. See, here you can see one figure is there. सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि सबसे पहले ग्राम पंचायत जो बेस में होता है, उसके बाद तालुका पंचायत, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत, then the state government, and that the supreme, it is a central government. whole country इस एरिया इस तरह से ही रूल होता है, बेस से स्टार्ट होके टॉप तक होता है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. फर्स्ट कम्स ग्राम पंचायत, उस वो किसके अंडर काम करता है? तालुका पंचायत. तालुका पंचायत वर्क्स अंडर डिस्ट्रिक्ट पंचायत. डिस्ट्रिक्ट पंचायत वर्क्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट. और अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गुजरात का सारा इसी तरह से चलता है, और सबसे बेस में है ग्राम पंचायती राज. इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट. ओके, नाउ रूरल गवर्नेंस. रूरल यानी जो गांव से रिलेटेड है, वहाँ कैसे काम चलता है. फर्स्ट इज ग्राम पंचायत. फॉर्मेशन एंड कॉम्पोजिशन, कैसे बनता है रूरल गवर्नमेंट में, और कैसे वर्क होता है. ग्राम पंचायत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ग्राम पंचायत इज composed in the village having population from 500 to 25,000. There are minimum 8 and maximum 16 candidates elected on the basis of population in the Gram Panchayat. Head of the Gram Panchayat is called Sarpanch, and Sarpanch as well as other candidates of Gram Panchayat are elected after every 5 years. Voters elect Sarpanch through direct voting. Ward members are elected by the voters of concerned wards. The Gram Panchayat elections are not contested by any political party or on the symbol of any political party. यानी ग्राम पंचायत कैसे बनता है, वो इम्पॉर्टेंट यूनिट है, और जिस गांव में 500 से लेकर 25,000 तक पॉपुलेशन है वहाँ पे होता है. वहाँ मिनिमम 8 मेंबर्स होते हैं और 16 मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन इलेक्टेड, और जो पॉपुलेशन है ग्राम पंचायत में उस हिसाब से इलेक्ट करके वहाँ रखे जाते हैं. और जो हेड होता है उनको सरपंच कहा जाता है, और जो सरपंच होते हैं वो पूरा विलेज का ध्यान रखते हैं, और वहाँ पे इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं. और वोटर्स सरपंच को डायरेक्ट वोटिंग से इलेक्ट करते हैं, और वार्ड्स बनाए जाते हैं. वार्ड मेंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग जो वार्ड्स होते हैं उनके हेड के तौर पर वो भी इलेक्ट किए जाते हैं. और ग्राम पंचायत जो होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर कंटेस्ट नहीं करता है, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल भी यूज़ नहीं करते हैं. नाउ हाउ डू दे डू देयर एडमिनिस्ट्रेशन. द सरपंच and members of the Gram Panchayat together decide the works development by making resolutions on the development. Talati cum minister is appointed by the government. He or she handles administrative work, collects taxes, makes reports of Gram Panchayat, and prepares forms and keeps records of budgetary accounts. The office of Gram Panchayat is also called village secretariat. यानी जो सरपंच होता है और जो दूसरे मेंबर्स ग्राम पंचायत के, वो लोग सब साथ में मिलके काम करते हैं. वो लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि हम हमारा गांव का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं. और जो तलाटी कम मिनिस्टर होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, वो सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, सारे रिपोर्ट ग्राम पंचायत के बनाते हैं, फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, और बजट का रिकॉर्ड रखते हैं. और ग्राम पंचायत जो होता है उसको विलेज सेक्रेटेरिएट भी बोला जाता है. और वहाँ यहाँ इनकम कैसे होती है. वाटर टैक्सेस, क्लीनिंग टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस, शॉप टैक्सेस, ये सारे टैक्स लगा के उनकी इनकम होती है, जिससे वो लोग विलेज और अच्छी तरह चला सकते हैं. साफ़ सफाई के लिए टैक्स होता है, पानी का टैक्स होता है, प्रॉपर्टी आपकी उसका टैक्स, शॉप का टैक्स. ओके,
देन ग्रांट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है जो स्टेट में वो है, वहाँ से उनको थोड़ी इनकम मिलती है अपना काम चलाने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो गवर्नमेंट दिल्ली से रूल करती है उस वो भी हेल्प करती है. देन now we will see the functions of the ग्राम पंचायत. फर्स्ट ऑफ ऑल गिविंग द हाउस नंबर, यानी जो गांव में मकान है उनको नंबर्स देना ताकि इजीली पता चल सके कौन सा ये पर्सन कहाँ रहता है. अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी की सुविधा देखना. मेकिंग रोड पाथ इन विलेजेस, मेकिंग रोड्स. देन क्लीनिंग ऑफ विलेज स्ट्रीट्स एंड डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर, यानी पूरे विलेज की जो स्ट्रीट्स होती है उनको साफ़ रखवाना, और गंदा पानी है जो वो उनका डिस्पोजल प्रॉपरली करना ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो. देन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करना. मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी इन द विलेज एंड लाइटिंग अरेंजमेंट इन द विलेज, यानी हेल्थ फैसिलिटी का ध्यान रखना और विलेज में प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है और वो भी देखना. एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेज, अवेयरनेस प्रोपगेशन, और एजुकेशन सबको मिले इस तरह से स्कूल्स होनी चाहिए विलेज में, और उनको अच्छी जानकारी मिले और सब सीखने को मिले वो भी होना चाहिए. फिर प्लानिंग ऑफ द विलेज डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ क्रॉप्स एंड पेस्चर इन द विलेज, मेंटेनेंस ऑफ लैंड एसेट ऑफिसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्टर, यानी विलेज का डेवलपमेंट हो ऐसा प्लानिंग करना चाहिए. फिर क्रॉप्स जो उगते हैं उनको अच्छी तरह मेंटेन करना. फिर एनिमल्स के लिए जो पेस्चर्स होते हैं जहाँ पे ग्रास वगैरह होता है वो भी देखना. फिर जो लैंड एसेट्स होती है ऑफिसेज वगैरह उनको संभालना अच्छी तरह, और विलेज में किसी का बर्थ होता है डेथ होता है उसका रजिस्टर मेंटेन करना. नाउ कम्स द ग्राम सभा. In general language, Gram Sabha means to collect the villagers. Village meeting is like a legislative assembly. All the elderly people of the village are considered as the members of Gram Sabha. All of them are supposed to remain present, have right to cast vote and even to put up proposal. यानी जो ग्राम सभा होती है उसमें सारे विलेजर्स जमा होते हैं, वहाँ पे मीटिंग होती है, जैसे असेंबली में मीटिंग होती है. फिर जो एल्डरली पीपल है विलेज के, जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो लोग मेंबर्स होते हैं ग्राम सभा के, और सब लोग ध्यान रखते हैं कि सबको हाजिर ही रहना है और उनको वोट करने का अधिकार भी मिलता है और अपनी बात रखने का, प्रपोजल रखने का भी अधिकार होता है. द ग्राम पंचायत इज़ रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा. Meeting of Gram Sabha is called after prior information. Officers from taluka and district level remain present in the meeting. Along with them, government employees of the village also remain present. यानी जो ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत तो साल में 2 बार मिलती है ग्राम सभा, और सरपंच जो होता है वो हेड होता है इस मीटिंग का, और जो मीटिंग होती है वो पहले से इन्फॉर्म करके रखनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं करते. और जो तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो भी उसमें प्रेजेंट रहते हैं और उनकी प्रेजेंस में ही मीटिंग की जाती है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी प्रेजेंट रहते हैं. प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क टू बी डन बाय द ग्राम पंचायत इज डिसाइडेड. वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज सच एज विलेज रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, क्लेनलीनेस, लाइट, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा डिस्कस. ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, और डेवलपमेंट वर्क ग्राम पंचायत क्या करना चाहती है वो भी वो लोग डिसाइड करते हैं, और सारी चीज़ें जो विलेज के फ़ायदे के लिए होती है वो डिसाइड करते हैं. Each and every member of Gram Panchayat should be aware and remain present in Gram Sabha. The village problems and development works should be discussed. Then only transparent administration and the purpose of the Gram Sabha will be successful. हर एक को हाजिर रहना है मेंबर को, और उसको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, क्या डिस्कस करना है, क्या नहीं करना है, और फिर डेवलपमेंट में क्या क्या करना चाहते हैं एकदम सबको पता हो, तभी ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है. छुपा के रखे बात और बाद में सबके सामने खुले और उसका कोई आउटकम ना हो, ऐसा नहीं होता है. नाउ दिस इज़ फॉर यू. विजिट सरपंच एंड तलाटी कम मिनिस्टर एंड कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. Population of your village, number of male and female voters. All this is not possible actually, so let it be.
Things to know: Samras Gram Panchayat. When Gram Panchayat is constituted with the consent of all without any opposed, then in Gujarat, this type of government is called Samras Panchayat. This scheme was implemented in Gujarat by Gram Panchayat Housing Development and Rural Development Department in October 2001 with the objectives of developing unity, cooperation, हारमनी एंड इंटीग्रेशन अमॉन्ग द विलेजेस. यानी ग्राम पंचायत जो होती है उसको विदाउट किसी ऑपोजिशन के नहीं हो तो इस टाइप का गवर्नमेंट जो एकदम स्मूथली वर्क करे उसको समरस ग्राम पंचायत बोलते हैं. और ये स्कीम अपने गुजरात में अक्टूबर 2001 में स्टार्ट हुई थी और इसका ऑब्जेक्टिव है यूनिटी रहे सब में, कोऑपरेशन, एक साथ मिलकर हारमनी से काम करे और इंटीग्रेशन यानी डेडिकेशन से काम करे. स्पेशल ग्रांट इज अलॉटेड इफ द ग्राम पंचायत बिकम समरस, देन दैट इज ऑल द मेंबर्स इंक्लूडिंग सरपंच आर वुमन एंड इलेक्टेड यूनानिमसली. द ग्राम सभा decides how to utilize the grant as per the decision of Gram Sabha. This grant is used for development work. If Gram Panchayat becomes samras continuously for 4 times, then government allocates a special grant. The government has announced this scheme to ensure that village panchayat election do not create unhappiness, excitement and enmity in the village. और जो ग्राम पंचायत बन जाती है तो उनको स्पेशल ग्रांट मिलती है. और जो ग्राम पंचायत समरस बन जाती है यानी कि सारे मेंबर्स वुमन है, लेडीज़ है और सब यूनानिमसली सबकी मन से इलेक्ट होते हैं, कोई अपोज नहीं करता, तो ऐसा होता है तो उनको ग्रांट मिलती है. और ग्राम सभा के जो डेवलपमेंट का काम है वो भी देखा जाता है. और अगर ग्राम पंचायत कंटिन्यूसली 4 बार ऐसा समरस ग्राम पंचायत बनती है तो उनको एक स्पेशल ग्रांट मिलती है और ये ग्रांट गवर्नमेंट देते हैं. विलेज पंचायत इलेक्शन की वजह से किसी को अनहैप्पीनेस ना हो, एनिमिटी दुश्मनी ना हो, ऐसा कुछ ना हो, इसलिए वो लोग ग्राम पंचायत को समरस ग्राम पंचायत को आगे लाना चाहते हैं. नाउ कम्स तालुका पंचायत. नाउ वी विल सी अबाउट द तालुका पंचायत. तालुका पंचायत is at the second level after ग्राम पंचायत in local self government. Formation कैसे बनता है? Numbers of seats of तालुका पंचायत are decided according to the ratio of population. There are minimum 16 and maximum 32 members. Elected members in तालुका पंचायत, 50% seats are reserved for women and out of them, voters of these seats elect the members of तालुका पंचायत. President and Vice President of Taluka Panchayat are selected by elected members on the basis of majority, as well as from these elected members Executive Committee, Social Justice Committee, etc. form. यानी इसमें मिनिमम नंबर 16 होते हैं मेंबर्स के और 32 मैक्सिमम होते हैं. और यहाँ 50% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होती है, लेडीज़ के लिए. और जो वोटर्स होते हैं वो तालुका पंचायत के वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनमें से ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी यानी जो ज़्यादा है उस हिसाब से करते हैं. और इलेक्टेड मेंबर्स, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी जो ऑफिसर्स होते हैं, फिर सोशल जस्टिस कमेटी जो सारे कानून वगैरह का ध्यान रखते हैं, वो सब इसके बाद फॉर्म होता है. नाउ या यू कैन सी एडमिनिस्ट्रेशन. द Administrative head of Taluka Panchayat is called Taluka Development Officer or TDO, and state government appoints him or her. यानी जो तालुका का जो हेड होता है उनको TDO बोला जाता है यानी तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर. और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उनको अपॉइंट करता है, चाहे लेडी हो या मैन हो. He gets the resolution of Taluka Panchayat implemented. He supervises all the employees of Taluka Panchayat and they prepare annual budget of the तालुका पंचायत. यानी वो सारा कामकाज देखते हैं, पूरा कैसे सुपरवाइज करना है, आज सब लोग कैसे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, फिर एनुअल बजट बनाना, ये सब वो देखते हैं. नाउ कम्स द फंक्शंस ऑफ तालुका पंचायत. टू प्रोवाइड हेल्थ एंड हाइजीन, दिस विल बी वाई हेल्थ एंड हाइजीन सर्विस. देन टू कंट्रोल एपिडेमिक, टू कंस्ट्रक्ट विलेज रोड्स एंड देयर मेंटेनेंस, टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज प्राइमरी स्कूल्स, to plan to improve agriculture at taluka level, to provide assistance for women welfare, youth
activities, social development to provide help at the time of flood, fire and other emergencies. यानी वो लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि हेल्थ और हाइजीन, साफ सफाई हो, अच्छी चीज़ें लोगों को फैसिलिटीज़ मिले। अगर कोई बीमारी के कुछ एपिडेमिक जैसे अभी कोरोना हो गया था, तो ऐसे टाइम पे कोई महामारी फैल जाए तो उसका कंट्रोल करना, फिर विलेज के रोड्स बनाना, उनको मेंटेन करना, स्कूल्स का ध्यान रखना, स्कूल्स एस्टेब्लिश भी करना और उनको संभालना भी, फिर एग्रीकल्चर इम्प्रूव करना और लेडीज़ का वेलफेयर हो, यूथ लोगों की लिए एक्टिविटीज़, ये सब उनको ध्यान रखना पड़ता है। और अगर फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई कि कुछ अदर इमरजेंसीज है तो भी उनको तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। नाउ कम्स थिंग्स टू नो तीर्थ ग्राम योजना scheme. This is a scheme introduced by the government. Tirth Gram Yojana was implemented on 21st July 2004-2005 in Gujarat. State government allocates grant to selected villages under this scheme. No crime should have been happened in the village for the last 5 years. Production, selling and consumption of narcotic drugs should not be done in the village. Cleanliness should be maintained. There should be high rate of girl education and lower rate of dropouts. Apart from this, Tirth Gram is chosen on the basis of other criteria. Objective of it is to promote mutual harmony, unity and brotherhood among the people living in the village. यानी इस योजना के अंतर्गत this योजना was started on 21st July in the year 2004-2005 गुजरात में स्टार्ट हुआ। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो यहाँ एक ग्रांट देती है। और कब ग्रांट मिलती है? ये स्कीम तब होगी जब 5 साल में यहाँ पे कोई गुनाह नहीं हुआ है, मारा मारी, खून खराबा, दंगे, ऐसा कुछ। फिर उस गांव में कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाए जाते, लिए जाते या बेचे जाते जो हेल्थ के लिए नुकसान करते हैं, जैसे नारकोटिक्स ड्रग्स है जो। फिर क्लिनलीनेस का ध्यान रखते हैं, गांव एकदम साफ़ सुथरा, प्लेस एकदम साफ़ सुथरी है। फिर गर्ल्स पढ़ती है, गर्ल्स एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। और लो रेट ऑफ ड्रॉप आउट, यानी स्कूल में से थोड़े टाइम कुछ स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद निकल जाते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं, दैट ऑल्सो शुड नॉट बी देयर। एंड इसके अलावा दूसरा है कि देखना चाहते हैं कि लोगों में हारमनी कैसी है, प्यार से रहते हैं, एकता से रहते हैं, भाईचारा होता है आपस में। तो that village gets this, that particular place gets this Tirth Gram Yojana scheme. Now पावन ग्राम योजना स्कीम, दिस इज़ अनदर स्कीम। इसमें भी वही है, इसमें 3 years में कोई क्राइम नहीं हुआ होना चाहिए। एंड तीर्थ ग्राम स्कीम, गवर्नमेंट चूज सच विलेजेस एंड एलोकेट ग्रांट अप टू 1 लाख रुपीज़ टू द विलेज। और ऐसे विलेज को सिलेक्ट करते हैं, उनको 1 लाख रुपये तक इनाम मीन्स ग्रांट मिलती है, जिससे वो विलेज को और बेटर कर सके। नाउ